Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So in the last lecture we studied FIOL 14 principles of management. Alright, so आपके जो FIOL के 14 principle है, apart from that in the administrative management theory, basically the contribution of FIOL was actually I told you all the 14 principles. But apart from those 14 principles, there are functions of management also being told by FIOL and 6 industrial activities being told by FIOL. So you have to remember that apart from these 14 principles, आपसे exam के point of view से भी exam important है that you should remember the functions of management which were given by FIOL. So इसके short form trick याद करने की है PO3C, that is planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. So these 5 functions were given by Henry FIOL. Alright, तो planning क्या होता है? Planning as we all know कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी हम प्लानिंग पहले करते हैं. प्लानिंग एक्चुअली इट टेल्स अस दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. आज हम किस स्टेज पे हैं और हमें कहाँ पे जाना है, उस गैप को जो बेसिकली फिल करता है वो हमारा प्लानिंग है. सो इट इज़ बेसिकली डिसाइडिंग ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ विच वी विल बी अंडरटेकिंग इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल. ऑलराइट, so the second function is organizing. Organizing simply means कि आप कोई भी आपने प्लानिंग कर ली, उसके बाद यू हैव टू बेसिकली डिसाइड कि हाउ मेनी पोस्ट, हाउ मेनी डिजिग्नेशंस, हाउ मेनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, सो बेसिकली डिसाइडिंग ऑल द स्ट्रक्चर, all the roles and responsibilities, all the number and type of post and designation which you will be having in order to achieve the goal is what is organizing. So the third function is commanding. कमांडिंग को हम डायरेक्टिंग कह रहे हैं, बट सिंस वी आर एक्चुअली स्टडिंग द फंक्शंस गिवन बाय हेनरी फ्योल, सो दैट इज़ इन दैट सेंस इट इज़ कमांडिंग. कमांड करना सिंपली मीन्स करने का मतलब है डायरेक्शंस देना, ऑर्डर देना, हाउ द थिंग्स विल बी डन. वेन एवर देयर विल नॉट बी एनी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर और कमांड गिवन, द एम्प्लॉयज़ और द वर्कर्स वोंट परफॉर्म अकॉर्डिंगली. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव द राइट डायरेक्शंस, राइट इंस्ट्रक्शंस, राइट ऑर्डर and right command and at the right time. So this is what is commanding. All right, so the next function of management is, after planning, organizing, commanding, comes controlling. So next function is coordinating. Here we will actually coordinating basically means team work के साथ, coordination के साथ, unity के साथ काम करना. So synchronizing and unifying the actions of a group of people is what is coordinating. Means ये ensure करना कि आप जब goals को achieve करने के लिए काम कर रहे हैं तो everyone should work in a team in a proper unified manner. That is what is coordinating. And the last function of management as per FIOL is controlling. So controlling basically means side by side we need to observe, we need to monitor how the things are happening or what is the end result. So controlling का मतलब ये नहीं होता कि लास्ट स्टेज में या जब सारा काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, उसके बाद हम चेक करते हैं. नो, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग साइमल्टेनियसली. बिकॉज जब कंट्रोलिंग फंक्शन साइमल्टेनियसली चलेगा तो जैसे ही हम गलत डायरेक्शन में या डेविएट होंगे तो जो भी मैनेजर है हमारा वो उसी टाइम हमें सही करेगा, करेक्ट करेगा. सो कंट्रोलिंग इज़ means having control over all the aspects that contribute to meeting the goal. All right, so these were the functions of management. Apart from these functions of management, it is very important the activities which are being given by Henry FIOL. So let's study these activities. As per Henry FIOL, there are 6 types of activities in management. So the first set of activity is technical skills. All right, so technical skills is, or technical activity is basically the activity which is happening inside the organization in which we are using technology. Why do we use technology? Whenever we think of actually using
बेसिकली टेक्नोलॉजी में हम जब भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, और वी कैन से दैट जितने भी फंक्शंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, लाइक प्रोडक्शन विच वी आर अंडरटेकिंग बाय मेकिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल दोज फंक्शंस विल बी अंडरटेकन और काउंटेड अंडर टेक्निकल फंक्शन और टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल एक्टिविटी. ऑलराइट. So the second activity is commercial activity. It basically involves buying, selling and exchange. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम जितनी भी परचेजिंग करते हैं, जितने भी बाइंग सेलिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजैक्शंस को, मार्केटिंग से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या सेल से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो वो आपकी विल बी काउंटेड अंडर कमर्शियल एक्टिविटी. ऑलराइट. सो इसके बाद आपका थर्ड सेट ऑफ एक्टिविटी आता है, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटी. मीन्स मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल. तो जब भी हम कैपिटल, आपके पैसा, मनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा. जब भी हम बजटिंग से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जब व्हेनेवर वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ अकाउंटिंग फंक्शंस और फाइनेंशियल फंक्शंस, दैट विल बी काउंटेड अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी. नेक्स्ट फंक्शन इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी एक्टिविटी. तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, सिक्योरिटी से मतलब बेसिकली आपके जितने भी, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे जितने भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कोई भी तरीके के हार्म से बचाने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़, जो भी फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं, अंडरटेक करते हैं, वो आपके सिक्योरिटी में आ जाएगा. लाइक हम इंश्योरेंस कराते हैं, हम बहुत जो भी मटेरियल्स है उनका भी, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिकवरी, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ सिक्योरिटी. ऑलराइट. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग बेसिकली मीन्स ascertaining द फाइनेंशियल पोजीशन. सो बेसिकली अकाउंटिंग में आपकी फंक्शंस जैसे कि हम बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारे फंक्शंस को जब हम परफॉर्म करते हैं, तो वो आपके आ जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, बेसिकली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. एंड द लास्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज़, मैनेजरियल एक्टिविटीज़. मैनेजरियल एक्टिविटीज़ सिंपली मीन्स मैनेजमेंट जब भी हम कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके ऑप्टिमम रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, जो भी काम, जो भी एक्टिविटी, जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे आपके आ जाएंगे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के अंदर. Alright, so in today's short lecture, we actually discussed what was left in Henry Fayol parts apart from the 14 principles which we already discussed in the previous lecture. We have studied the 5 functions of management given by Henry Fayol, and we have discussed the 6 classification of the activities which are given by Henry Fayol. I hope you would have enjoyed and learned a lot from this lecture. If you have any sort of doubt, please post in the comment section, write it in the comment section. Thank you for watching, and yes, please do motivate me by just simply liking, sharing and subscribing. And yes, if you have not subscribed yet, so please press the bell icon and subscribe to my channel. Thank you for watching.